Physical evidence, we can say, is the form of uh, physical evidence refers to all the physical forms, or we can say documents and equipment, which help customer to get service from service holder. For example, we can say signage, symbols, uniforms, hospitals, receipts. Okay. Tell me about the service triangle. Service triangle, we can say, is a representation of three um, uh, key elements of a service marketing, like a company, employees, and a customer. The relationship between company and employee is called internal communication. Company and customer is called external communication, and employees and customer is called interactive communication. Okay. So tell me about the internal marketing. Internal marketing. Internal marketing is all internal marketing. Internal marketing or internal communication. Internal marketing. I'm not aware about that. Sorry, ma'am. Okay. You don't need to say sorry. It's okay. Okay. Who is left with the Viva? सब लोगों ने लिख लिया. Today's topic is customer expectation. Okay. So सबसे पहले what is the meaning of expectation? Expectation का मतलब क्या होता है? What is the meaning of expectation? In the normal term I'm asking, what is the meaning of expectation? क्या उम्मीद जितना रहे किसी चीज वो क्या चाहते हैं? See, expectation is something जो हम दूसरों से basically हम सोचते हैं कि the person, like for example in service sector, अगर हम किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, किसी भी जगह से हम कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं, तो हम बेसिकली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग टू इट्स क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है, यानी हम क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिले. ठीक है, बट दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द अदर. ये हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, यानी अपने आप में आप कुछ नहीं सोचिएगा, यू विल एक्सपेक्ट दिस थिंग टू द अदर्स कि वो क्या बेसिकली आपको देना, मतलब उनको क्या देना चाहिए, यानी किस टाइप की प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विस उनको देना चाहिए, वो एक लेवल आप अपने दिमाग में सोचते हो, बेसिकली आप एक्सपेक्ट करते हो. तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन यही होता है कि बेसिकली वो किसी भी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज में. ठीक है, तो इसमें लिखिए कस्टमर एक्सपेक्टेशन में राइट, customer expectations are belief, customer expectation are belief about service delivery, customer expectation are belief about service delivery, about service delivery. आगे लिखिए that serve as a standard or reference, यानी आपने एक स्टैंडर्ड अपने दिमाग में सेट कर रखा है, एक बिलीफ आपने बना रखा है. और ये एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, ये हमेशा आपकी एक्सपीरियंस, आपके नॉलेज के हिसाब से होता है. लाइक वॉट एवर यू एक्सपीरियंस, लाइक जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन 5 स्टार होटल में गया, तो उसका एक्सपेक्टेशन उस होटल से क्या होगा कि भाई मुझे सर्विस बहुत हाई क्वालिटी की मिलेगी, राइट? या हो सकता है उसे मिलती भी होगी, मिलती ही है ऑब्वियसली. तो आप अपने एक्सपेक्टेशन को अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस सेट कर लेते हो, एक बिलीफ बना लेते हो, या तो आप एक्सपीरियंस करते हो या फिर आपने कहीं पब्लिसिटी, उसके एडवर्टीजमेंट कहीं से भी आपने सुना हो उनके बारे में, यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट अगर मैं यहाँ जाके सर्विस लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे इस टाइप की, इस क्वालिटी की, इस सर्विस मुझे मिलेगी. ठीक है, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर बिलीव अबाउट service delivery that serve as a standard or reference,
serve as standard or reference points take a standard reference points which on which basis performance is judged. On which basis performance is judged. Customer expectations are belief about service delivery that serve as a standard or reference points. Reference points से साथ में ये शायद reference points which on which basis performance is judged. On which basis performance is judged. ठीक है, आगे लिखिए expectation is created in mind of expectation is created in mind of customer. Expectation is created in mind of customer. Expectation is created in mind of customer, and these expectation based upon, and these expectation is based upon, and these expectation is based upon, and these expectation is based upon individual experience, the individual experience. Expectation is created in mind of customer, and these expectation based upon the individual experience. ठीक है, what they learned, जो and comma what they learned लिखे, what they learned comma what they learned, LEARNED, learned comma knowledge. Expectation is created in mind of customer, and these expectation based upon the individual experience, comma what they learned, और आगे लिखिए knowledge and knowledge. ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर क्या बेसिकली प्रोडक्ट उसको कैसा मिलना चाहिए, सर्विस को उसको कैसे डिलीवर होना चाहिए. अगर हम सब सर्विस मार्केटिंग की बात करें तो बेसिकली कोई भी कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है. अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, वैसे ही सर्विस की क्वालिटी. बट इस एक्सपेक्टेशन को बनाने के लिए उनको तीन चीजों की जरूरत होती है, दैट इज लर्निंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. लर्निंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इन तीनों की वजह से बेसिकली कोई भी कस्टमर क्या बेसिकली एक्सपेक्टेशन करता है, एक्सपेक्ट करता है बेसिकली पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी से एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना लेता है. ठीक है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना लेगा कि भाई मुझे ये सर्विसेज मिलनी चाहिए और साथ में इतनी जल्दी मिलनी चाहिए, इतने पैसे मिलनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन इज अबाउट एनीथिंग. पैसे बेसिकली यहाँ सर्विस सेक्टर है तो सिर्फ सर्विस डिलीवरी की हम बात करें, बट प्रोडक्ट्स के से भी रिलेटेड हो सकता है और सर्विस से रिलेटेड. तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है समझ में आया कि बेसिकली कस्टमर क्या सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्रिएट करता है अपने माइंड में, बेसिकली रिलेटेड विद द नॉलेज, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड क्या उसने लर्न किया, उस हिसाब से वो क्या पर्टिकुलरली कंपनी से चाहता है कि उसको क्या गुड और सर्विसेज डिलीवर हो. क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स, what are the various factors which are influencing the customer के expectation को, कौन कौन से factors influence करते हैं. इनके सिर्फ words लिख लेना, I don't need कि इसमें explanation की जरूरत है किसी को भी. Factors influencing the customer expectation, कौन कौन से factors हैं जो customer के expectation को influence करते हैं. तो first तो वही चीज हो गया, previous customer experience. Factors influencing the customer expectation में लिखिए previous customer experience, previous customer experience, previous customer experience में क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है जिसका एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलरली कंपनी के साथ अच्छा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने होटल्स का एग्जांपल लिया, अगर किसी पर्सन ने 2 days वहां स्टे किया
एंड दे फाउंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी गुड और वो बहुत ज्यादा हाईली सेटिस्फाइड है, तो नेक्स्ट टाइम भी जब वो बेसिकली उस होटल में जब वो स्टे करेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन का लेवल उसी तरीके से हाई रहेगा, बिकॉज उसको पहले भी जो सर्विस मिला है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और डिलाइट होकर के कस्टमर वहां से निकला है। लेकिन वही अगर वो पर्सन जो है वो डिससेटिस्फाइड होगा, उसको सर्विसेज एज पर जितना उसने सोचा था पहले उसको नहीं मिलेगा, तो जब वो नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है कि पहली बार तो दूसरी बार सर्विस लेना नहीं चाहेगा उस जगह से, एंड अगर वो लेता है तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। किस चीज से रिलेटेड? एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कि भाई मे बी वो कैसा सर्विस देगा, लास्ट टाइम तो अच्छा नहीं था, इस बार का पता नहीं, लाइक वो बेसिकली डायलेमे वाले कंडीशन में होगा, कंफ्यूज रहेगा अबाउट द एक्सपेक्टेशन कि वो बेसिकली वो क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि लास्ट टाइम तो इसने उतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला सिनेरियो आएगा। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो दोनों टर्म में होगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो हो सकता है दोबारा वो सर्विस नहीं ले, और अगर लेता भी है तो कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन उस लेवल का नहीं होगा। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर सकता है, वो डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा एक्सपेक्टेशन, डिक्रीज नहीं करेगा अगर उसका जो लास्ट टाइम उसने वो पर्सन हाईली सेटिस्फाइड था तो कस्टमर। नेक्स्ट इज कस्टमर कम्युनिकेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशन? तो पहला तो प्रीवियस कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया जो उसने एक्सपीरियंस किया। सेकंड इज कस्टमर कम्युनिकेशन। कस्टमर कम्युनिकेशन कस्टमर कम्युनिकेशन कस्टमर कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि अगर बेसिकली किस तरीके से कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा है अबाउट देयर सर्विसेज इन द मार्केट, मतलब वो किस तरीके से उसके बारे में एडवर्टाइज कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो किस तरीके से मैसेज जो है कंज्यूमर तक डिलीवर कर रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक ब्लॉग हो गए, पोस्ट हो गए, ट्वीट हो गया, वेब पेजेस हो गए, ईमेल्स हो गया, वो अपने बारे में, कंपनी के बारे में क्या चीजें बता रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ स्कूल का, तो अभी आपने बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे त्रिभुवन स्कूल का, उसमें वो कितने अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट द एरिया ऑफ द स्कूल, अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टडी एंड एजुकेशन एंड अबाउट एवरीथिंग। So how you are communicating about your company product, how you are telling them that what kind of quality we are going to give you, तो ये सारी जो चीजें होती है, जो किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, पर्सन उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन बनाता है अबाउट द पर्टिकुलर सर्विस क्वालिटी। यानी कि अगर मैं देख रही हूँ कि अरे बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हैं इतने बड़े बड़े, मतलब दे आर एडवर्टाइजिंग अ लॉट, बहुत अच्छे से एडवर्टाइज करे, स्कूल के बारे में सारी क्वालिटी बता रहे हैं, टीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि टीचर्स काफी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड है, तो बेसिकली मैं एक्सपेक्टेशन भी यही रखूंगी कि मुझे यहाँ सर्विस भी 100% जैसा वो कम्युनिकेट करे वैसा ही दे। तो लाइक कम्युनिकेशन ऑल्सो लीड कि व्हाट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पर्टिकुलरली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया? तो इसमें लिख सकते हैं कस्टमर कम्युनिकेशन में कि क्या किस किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, वेब पेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, यानी हर तरीके से आप एडवर्टीजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो अपनी कंपनी के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी कम्युनिकेट कर रहा है, यानी वॉट एवर दे आर telling, whatever they are giving information, whatever message they are delivering to the customers, that should be clear। एक तो क्लियर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, रियलिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी बोल रहे हो और असलियत में वो चीज एग्जिस्ट है, करता ही नहीं है। तो वट एवर प्रॉमिस यू आर मेकिंग, दैट शुड बी क्लियर, ऑनेस्ट एंड बोल सकते हैं ना कि देयर शुड बी नो फ्रॉड और समथिंग, कुछ भी आप ऐसा अनरियलिस्टिक कुछ भी ऐसा प्रॉमिस कम्युनिकेशन में मत कीजिएगा। Clear? Third point, right? Third point. Third लिखिए, review and word of mouth. Review and word of mouth. Review and word of mouth. Review and word of mouth, obviously कि basically आप particularly कोई, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम अपने फैमिली मेंबर्स को ही ले लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई सर्विस लिया, जैसे मान लो हेयर कटिंग ले लिया, ठीक है,
मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने घर पे भी आके सबको बोलूंगी कि भाई वहीं से लो हेयर कटिंग अगर लेना है तो सर्विसेज वगैरह, अपनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ग्रुप, सबको ये बात बताऊंगी। तो ये कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ जो है, अब ये बात जो मैंने उसकी तारीफ की, मैंने कुछ रिव्यूज दिया कि नहीं बहुत अच्छी सर्विस एंड ऑल, ये सामने वाले पर्सन के माइंड में एक्सपेक्टेशन लाएगा कि अगर इनको ये सर्विस अच्छा मिला तो मुझे भी ये सर्विस इसी लेवल का देंगे। ठीक है, तो एक बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन आपका सेट होता है जब आप किसी के मुंह से उसकी तारीफ सुनते हो, उसके बारे में प्रोडक्ट का मैसेज सुनते हो, मतलब प्रोडक्ट का या सर्विस डिलीवरी के बारे में जब आप सुनते हो, पर्सन अगर किसी चीज का बेसिकली एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को क्रिएट करने में, पर्टिकुलर पर्सन या कस्टमर को एक्सपेक्टेशन को जनरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, previous experience with other companies, previous experience with other companies, ने previous experience with other companies, with other companies जरूर लगा लीजिएगा, previous experience with other companies, previous experience with other companies, बाकी सब क्या, so what I am saying about कि एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर कस्टमर ने क्या एक्सपीरियंस किया है कुछ और कंपनीज के साथ, लाइक जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं पार्लर्स की एग्जांपल हूं तो दे आर वेरियस ऑफ पार्लर्स, लैक्मे भी है आपका, ठीक है, जावेद हबीब है। तो लाइक अगर कोई पर्सन कुछ पर्सन कहीं से सर्विस ले रहा है, हेयर कटिंग ले रहा है जावेद हबीब से, तो लाइक दैट इज ऑल्सो अ ब्रांडेड कंपनी, और कहीं ना कहीं अगर वो लैक्मे की तरफ मूव ऑन करता है तो वो वहां से जो उसका एक्सपेक्टेशन है वो उधर भी लेकर सेम एक्सपेक्टेशन आएगा, बिकॉज वो क्या करेगा, ब्रांड की इक्विटी को मिलाने की कोशिश करेगा, यानी कि ब्रांड की वैल्यू। तो समझ आएगा कि लाइक जावेद हबीब भी रिनाउंड है, लैक्मे इज ऑल्सो रिनाउंड, राइट। तो कहीं ना कहीं वट एवर एक्सपीरियंस ही गेन फ्रॉम द अदर कंपनीज, ही जस्ट ट्राई टू मेक द सेम एक्सपेक्टेशन विद द डिफरेंट कंपनीज एज वेल। तो लाइक कहीं ना कहीं जो उसका एक्सपीरियंस, मतलब एक क्वालिटी का, वैसा नहीं कि कोई पर्सन ठेला से खाना खा रहा है तो ही स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग ऑन द विद द रेस्टोरेंट एज वेल, और जो रेस्टोरेंट में खा रहा है वो चीज एक्चुअल में जहां पर ब्रांड इक्विटी सेम होगी, ब्रांड वैल्यू सेम होगी, कंपनी रिनाउंड दोनों होंगी, और अगर वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी की तरफ स्विच कर रहा है या सर्विस के लिए स्विच कर रहा है, तो ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, he just make the same expectation whatever he is getting in the previous company. एग्जाम्पल के लिए बैंक भी आप ले सकते हो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक है, बोथ आर पब्लिक बैंक्स, राइट, बोथ आर पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक बैंक्स, मतलब सॉरी पब्लिक बैंक नॉट इन दैट सेंस, दैट इज लाइक वी कैन से प्राइवेट बैंक है लेकिन पब्लिक के लिए है, बेसिकली वो रिटेल बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ सर, तो लाइक दोनों पब्लिक के साथ डील करते हैं, दोनों के कस्टमर्स हैं। तो अगर मैं आईसीआईसीआई के बाद एचडीएफसी में मूव करती हूँ तो मैंने जो आईसीआईसीआई से क्वालिटी परसीव किया, जो चीजें मुझे मिली, वो सेम चीज मैं एचडीएफसी के साथ भी वही एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे वही क्वालिटी मिले, क्योंकि एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई दोनों कॉम्पिटिटर बैंक्स हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक चल रहा है, सेकंड पे एसबीआई एंड थर्ड पे आईसीआईसीआई। तो लाइक ये सिनेरियो मेरे दिमाग में सेट रहेगा, तो ये भी एक रीजन है एक्सपेक्टेशन को जनरेट करने का या इन्फ्लुएंस करने का एक्सपेक्टेशन को। नेक्स्ट इज, अब आइए जो एक टर्म है जो मुझे बताना है, क्या बोल रहे हो बच्चे, कोई भी यूटिलाइज कीजिए ऑप्शंस रिगार्डिंग टू द सर्विस डिलीवरी, प्रोडक्ट एज वेल एज पेमेंट, तो उनको ऑप्शंस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि कस्टमर के साथ इंगेज रहिए, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। कंज्यूमर के साथ इंगेज रहने की कोशिश कीजिए, जब भी कोई कस्टमर आए उनके साथ इंगेज रहिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सुनिए, ठीक है। फीडबैक्स लीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाए और यहाँ से वो 100% सेटिस्फाई होकर जाए, ठीक है। कंप्लेन मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए कि आपका कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, तुरंत फीडबैक वगैरह मिल रहा है, आप कैसे उनको रिप्लाई कर रहे हो, वे ऑफ टॉकिंग क्या आपके कस्टमर के साथ, ठीक है। रिसर्च कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए कि कस्टमर का आजकल क्या डिमांड है, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर कोई कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिए तो। अच्छा, एक एग्जाम्पल के लिए ये मैं इसमें एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ। अच्छा, रोलेक्स सबने सुना होगा, लग्जरियस वॉच में आता है ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जब व्हेन यू आर गोइंग टू when you are going to spend around 1 lakh rupees on a watch,
मतलब वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सोचे ही नहीं है। हाँ, मतलब रोलेक्स के पहले तो एंटर करोगे जैसे शॉप में, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड है, मैं प्रोडक्ट की एग्जांपल दे रही हूँ, सर्विस का एग्जांपल ये नहीं है, बट स्टिल आई एम आस्किंग दिस। प्रोडक्ट सर्विस अपने दोनों डिफरेंट तो खैर है नहीं, लेकिन फिर भी बताइए, सर्विस और प्रोडक्ट ज्यादा डिफरेंट नहीं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो रोलेक्स वॉच लेने जाइएगा, शोरूम में जाइएगा, मान लीजिए हिलॉयस के शोरूम में गया, उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे? आई एम पहले तो नॉट आस्किंग शोरूम कि ही हु अच्छा आर होना एबल, चाहिए। क्या एज्यूम करते हो, क्या सोचते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैम पहले तो जाएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सही से होना चाहिए, मतलब फिजिकल एविडेंस अच्छा होना चाहिए। हम्म हाँ, फिर वहाँ जो डील करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ अच्छे से डील करें। हम्म अगर हम खरीदे या ना खरीदे, फिर भी हमें बताने वाला कोई अच्छे से होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। हम्म ठीक है, तो काइंड ऑफ मैम वी इसमें कैन, अकॉर्डिंगली, हाँ यस मैम, मैम बोलो बोलो। जो 7 Ps है सर्विस मार्केटिंग का, मैम सारे ना सारे से कहीं ने मतलब तरीके कोऑर्डिनेशन में, लाइक प्रोडक्ट related means कि कस्टमर से, दैट कस्टमर enters the particular shop for that product। मैम जैसे फिर नेक्स्ट हो गया प्लेस हो गया, तो एक कन्वीनियंस प्लेस होना चाहिए। आफ्टर कमिंग टू द प्रमोशन, मैम प्रमोशन में मैम कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए। इट मींस कि जो मींस कि कस्टमर एंड जो वहाँ के जो शॉपकीपर जो है, फिर जो प्रोवाइडर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए, एक फ्रेश कम्युनिकेशन होना चाहिए मैम। फिर देन आफ्टर कम्स टू द पीपल, मैम इन पीपल लाइक केयरिंग नेचर का होना चाहिए। इट मींस कि एनी मतलब एक हार्डनेस नहीं होना चाहिए वर्ड में। और आफ्टर पीपल द प्रोसेस मैम प्रोसेस में मैम कोऑर्डिनेशन एक अच्छे तरीके का होना चाहिए सर्विस प्रोवाइड करने में एंड प्रोडक्ट को अवेल करने में। मैम लाइक फिजिकल एविडेंस में मैम वही प्रोडक्ट कंफर्मेशन के आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये गुड, ठीक है, ये बेसिकली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ये तो उसकी बात हो। ओके, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर एंटर इन अशोका होटल, है ना यहाँ पर कोई? यस मैम। हाँ ठीक है, तो अशोका होटल में आप एंटर करो तो व्हाट यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट होटल? दैट इज अ काइंड ऑफ 3 स्टार होटल, राइट? 3 स्टार होटल है Ashoka hotel mein, you are entering, right? So what you are expecting as a customer, what you will expect? Welcoming nature firstly when we entered in Ashoka hotel. After that ma'am, greeting, और फिर मैम उसकी सर्विस कैसी है, वो कैसे फ्रेंडली नेचर है, उनके मैनेजर के बिहेवियर कैसा है, वो हमें कैसे ग्रीट कर रहे हैं, उनका हमें अपनी सर्विस कैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से हमें अपने सर्विस को बता रहे हैं। डजंट मीन कि हम वो सर्विस अभी लें या कुछ दिन बाद लें। मे बी मैम एज एग्जाम्पल अगर हम लोग वहाँ बुकिंग करते हैं तो वो पहले हम लोग उनके मैनेजर से हर डिटेल में पूछते हैं कि यहाँ क्या प्राइस है, कैसे क्या मैनेज होगा, मैम वो उनकी बिहेवियर कैसे है, फिर अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर मैम कैसी है। And what about food? If that is not as such what you expected, are you going to concern about the other factors? नो मैम। बेसिकली वी आस्क फूडिंग मैम। अगर हम लोग को रेस्टोरेंट जाते हैं तो बेसिकली हम लोग वहाँ फूडिंग की देखते हैं और सर्विस देखते हैं। जैसे मैम मैंने कहा कि हम लोग को कोई बुक करने जा रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले हम लोग बेसिकली फूडिंग देखेंगे, उससे पहले मैम हम लोग वहाँ की इंफॉर्मेशन पहले ले लेंगे कि वहाँ की फूडिंग कैसी है और वहाँ की सर्विस कैसे है। मान लीजिए कि आपके फूड में कॉकरोच मिला, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? नहीं, ऐसा मान लो, आई एम नॉट सेइंग दैट, थिंक अबाउट इट राइट नाउ. So what if that is a kind of thing that you are not going to tolerate, right? So Yes, you're ma'am. just going to complain about it, and what you are expecting, that what kind of service after that they are going to give you, like what they need to do for this. क्या करेंगे? मैम हम लोग ऑब्वियसली मैम उनसे दोबारा फिर हम लोग उस फूड को ऑर्डर करवाएंगे और बेटर तरीके से बनवा के बोलेंगे और मैम फ्री में देना चाहिए मैम फिर